Okay, students. So today our lecture is on ionization energy. ठीक है? We are going to discuss ionization energy in today's class. Okay. So after this lecture, you will be able to solve questions based on ionization energy. ठीक है? Weightage of this chapter I have already told you in my previous class. 2 to 3 questions every year. ठीक है? So we can also expect in 2025. ठीक है? 2 to 3 questions. It means this chapter is highly important for us, and this chapter is also a very simple chapter. ठीक है? तो okay, बिफोर गोइंग टू फर्दर, तो हम ये क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे अभी. ठीक है? तो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चंस. ठीक है? 2 क्वेश्चंस आर देयर, फर्स्ट वन इज एंड सेकंड वन इज. ठीक है? तो फर्स्ट you try to solve first, then I'll the answer for this question. ठीक है? Okay. Which of the following is generally true regarding effective nuclear charge? Okay बच्चों, पहले आप ट्राई करो. Can you hear me बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Okay, so please try to solve this question. Which of the following is generally true regarding effective nuclear charge? If you know the answer, then raise your hand. Okay. Okay, Divisha raised her hand. Okay. अनुष्का, गायत्री, मंतशा, मिश्पा, ओम ने भी कर दिया है, शिखा. Okay. Om, can you tell me the answer with explanation? Fourth option, ma'am. Fourth option, both 1 and 2. Can you explain, beta? Yes, ma'am. It increases moving from left to right in periods. Okay. And it almost constant on moving from top to bottom in a group. ओके. हाँ, तुमने तो ये वही बता दिया, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ही बता दिए. ठीक है? आई वोंट डिटेल सॉल्यूशन. ठीक है? तो ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू अनुष्का. हर्षदा बेटा लेट हो गए आज. Yes, ma'am. I was outside today. ओके. ओके बेटा. Ma'am, ठीक have है. you taught something? या बेटा, एक्चुअली अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ट्रू रिगार्डिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू ओम, करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ. तो यस, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ 1 and 2. ठीक है? इट इंक्रीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. ठीक है? रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाज व्हाट? Force of attraction. It was just force of attraction between nucleus and your valence shell electron. ठीक है? Do you remember ना previous class? ठीक है? तो also I have told you कि Z effective, which is your effective nuclear charge, increases when you move from left to right. ठीक है? Because when we move from left to right, electrons are added in same shell, or electrons are added in same shell, then force of attraction becomes stronger, right? Because of this reason, effective nuclear charge increases along the period. And what about down the group? Down the group, number of shells are increasing, right? So in that case, effective nuclear charge wala jo factor tha was almost constant when we move from top to bottom. ये दो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए. क्लियर है बच्चों? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, Okay. Try to solve this question, बच्चे. From the given set of species, point out the species from each set having highest effective nuclear charge. And बच्चे, try to be active in my class. ठीक है? If you are not active, then class is going to be very boring. ठीक है? तो please be active. ठीक है? From the given set of species, point out the species from each set having highest Z effective. Okay.
फर्स्ट वन इज O2 नेगेटिव, F नेगेटिव एंड Na प्लस. आपको इसमें से बताना है which one having highest effective nuclear charge. Okay, तो please try to solve this question, and if you know the answer then raise your hand. Do fast बच्चों. Okay, Anushka is saying option A. Okay, what about others? A. Harshada is also saying A. Okay, Mishba. Yes, ma'am. Yes, बताओ, according to you which one is correct? Ma'am, option A is correct. Yeah, option A is correct. Okay, can you explain, Mishba, why option 1 is correct? मैम फर्स्ट में O2 माइनस है और F माइनस और Na प्लस. या you can speak in हिंदी. कर सकते हो आप, हिंदी में एक्सप्लेन करो. जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो ना उसी में ही बात कर सकते हो. ठीक है, हाँ बोलो बेटा. मैम Na प्लस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्लस में है वो, इसीलिए. इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम? ज्यादा. बच्चे देखो, इन सोडियम वी हैव 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन. यस मैम. ठीक है, while in case of Na plus we have only 10 electrons and 11 protons, right? So if there is a 10 electron or 11 protons, then nuclear charge increases na, effective nuclear charge, force of attraction between nucleus and valence shell electrons. If I remove the one electron, the atomic radius is lower. Yes, due to effective, I have told you the atomic radii decreases due to effective nuclear charge, right? Due to increase in, likh lo, please write in your notebook, due to increase in effective nuclear charge, atomic radii decreases. Do you remember this? Yeah. ठीक है, एंड सेम इसमें भी ये होगा. Na plus has lower atomic radii than O2 negative and F negative. That is why Na plus has a higher effective nuclear charge. Okay, in B option check करो, size check करो. Carbon has smaller size, carbon has less atomic radii as compared to lithium और beryllium, तो कार्बन का ज्यादा होगा. एंड इन केस ऑफ हीलियम, lithium plus and H negative, lithium plus has highest effective nuclear charge. ठीक है बच्चों, क्लियर? यस मैम. ठीक है, तो आप लोगों को ना रिवाइज करके आना है. ठीक है, डू प्रॉपर रिवीजन. ठीक है, प्लीज रिवाइज योर प्रीवियस लेक्चर. ठीक है, if you will not revise your lecture तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है बेटा क्लास में. ठीक है, तो जो भी टीचर कराता है आप रिवाइज करके आइए. ओके ओके, तो अभी मैंने बोला टुडेज टॉपिक इज आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, first we have to understand what is ionization enthalpy. You can also say ionization energy, you can also say ionization potential, or you can also say enthalpy. ठीक है, enthalpy बोलो, energy बोलो और potential, meaning are same. ठीक है, ओके. तो what is ionization enthalpy? तो बच्चे लेट अस कंसिडर, प्लीज इधर देखिए, लेट अस कंसिडर दिस इज आवर न्यूक्लियस एंड दिस इज आवर शेल्स, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल. ठीक है, आई हैव इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, आई हैव इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. तो बच्चा हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, प्लीज ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली. हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी आई विल गिव टू दिस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. क्या बोला? आई एम रिपीटिंग. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड. मोस्ट लूजली बाउंडेड का मतलब क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन. ठीक है, हाउ मच एनर्जी आई विल गिव टू दिस इलेक्ट्रॉन टू रिमूव फ्रॉम द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम. दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आइसोलेटेड गैसियस एटम इन द ग्राउंड स्टेट. ठीक है, मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. व्हाट वी मीन बाय आइसोलेटेड गैसियस एटम? कैन एनीवन एक्सप्लेन?
आइसोलेटेड गैसियस एटम का मीनिंग क्या है? कोई मुझे बताएगा अगर किसी ने कहीं पढ़ा हो? टेल मी. ओम, हर्षदा, मंतशा, गायत्री. आइसोलेटेड गैसियस एटम. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? कैन यू हियर मी? मैम, यस. when an atom is free from other atoms in gaseous state. Yeah, when an atom is free from other atoms. ठीक है. If you बच्चे, if you take solid state, then atoms are closely packed. You know ना, in solid state atoms are closely packed. So in gaseous state we know atoms are far apart from each other. If atoms are far apart from each other, then we can easily remove electron from the valence shell. So we have to consider isolated gaseous atom. This word is very very important. Isolated gaseous atom. ठीक है. The atom which has no interaction with other atoms. Clear? Yes, ma'am. This is the meaning of isolated. ठीक है. So in ionization and enthalpy we have to consider isolated gaseous atom. ठीक है. Okay. Next move करते हैं. देखो बच्चों, if I consider an a species A, ठीक है, जनरल है A, मैंने कोई इसका नाम नहीं दिया है. Let's say A is in gaseous state. ठीक है. Okay. Yes बेटा, क्या हुआ अनुष्का? What happened? Okay. Okay बच्चे, if I remove, please listen carefully, if I remove one electron from A atom, then it becomes positively charged. Please tell me. Yes, ma'am. If I remove one electron from A, then it becomes positively charged. So how much amount of energy I'll give the electron, ठीक है, how much energy I'll give in order to remove the electron from valence shell, this is your ionization energy. And ionization energy को हम denote करते हैं delta H से. ठीक है, we can denote ionization energy by delta H. Okay, and the units of ionization energy is kilojoule per mole, joule per mole और electron volt. ठीक है. Yes हर्षदा. But ma'am, how we can determine how much amount is required? ठीक है, हम करेंगे ना आगे इसको. ठीक है, we will solve the question. Okay. Don't worry. ठीक है, don't worry, we'll solve the question. ठीक है. अभी just you have to understand what is the meaning of ionization energy or ionization enthalpy or ionization potential. तो I hope कि definition is clear. ठीक है. Okay, Yes, ma'am. definition is clear. Unit of ionization energy is kilojoule per mole, or you can also say joule, because energy की जो unit होती है वो क्या होती है? Joule और kilojoule, or you can say electron volt per atom. Okay, now successive ionization enthalpy. Okay, अनुष्का, sure बेटा. ठीक है अनुष्का. ठीक है. ओके, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी. अब सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? इफ आई रिमूव द इलेक्ट्रॉन जस्ट आफ्टर द वन, जैसे सपोज इफ आई हैव एटम ए, ठीक है, आई रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एटम, इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, इफ आई रिमूव वन इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम +1, राइट? प्लीज देखिए. Yes, ma'am. ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा विच इज डेल्टा H1. ठीक है, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है. ठीक है, इफ यू आर रिमूविंग वन अनदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम A+, इट बिकम्स A2+, and corresponding to this the ionization energy is delta H2. Yeah, you can also write ionization energy 2 like this. ठीक है, then you are removing one another electron from A2+, then it become A3+. This is what? Successive ionization energy. If you are removing electron one after one, right? This is your ionization, successive ionization energy. But note this point, that third ionization energy,
please listen carefully. When you are removing third electron, then it has highest ionization energy as compared to second and as compared to first ionization energy. Can you explain this? कोई बच्चा explain कर सकता है इस point को कि why third ionization energy is highest as compared to 2 or 1? Can anyone explain? Harshida, Rupali, you are late, beta. Why? Ma'am, can you explain this once? I haven't Sure, understand. Sure, beta. Rupali, you are late. Okay. देखो बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है? आई एम सेइंग इफ यू हैव स्पीसीज ए, ठीक है, ए कोई एटम है, ठीक है, आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये ठीक है, ये क्लियर है? बताइए, टेल मी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, जैसे ही बच्चों इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, आपका मन हुआ मैं तो एक इलेक्ट्रॉन और निकालूंगी, तो अगर आप इफ यू आर रिमूविंग वन मोर इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम्स A2+, क्योंकि ये पहले से A+ था. गेटिंग माय पॉइंट? and then you are removing one more electron, then A2+ become A3+. बताइए, सिंपल है. देखो बच्चों, बोलो, अभी भी नहीं हुआ क्लियर? बच्चों प्लीज टेल मी क्लियरली ना. if it is not clear then I'll repeat. if it is clear then I'll moving forward. Okay, एक एग्जांपल लें. लेट्स टेक एन एग्जांपल, राइट? दिस इज योर Na. क्लियर? ठीक है. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na. हर्षिदा प्लीज टेल मी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na. 1s2. हाँ. 2s2. यस. या आगे हर्षिदा. 2p. 2p6 and 3s1. ओके. अच्छा, if you are removing one electron from 3s, क्योंकि मैंने क्या बोला था, what is ionization energy? Amount of energy required to electron from valence shell. हर्षिदा क्लियर है? ठीक है. Yes, ma'am. So when I remove one electron from 3s orbital, then it becomes Na+, because अभी इसके पास कितने हैं? 6, 7, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? एंड अभी Yes. देखो 1s2, 2s2, 2p6, it has only 10 electrons and proton is still 11 protons, और इसमें भी 11 proton, तो it become Na+ ना, because number of protons are greater than electrons, है ना? number of protons are more than number of electrons. क्लियर है बच्चे? देखो हर्षदा, Yes, ma'am. यही तो Yes, बता रही ma'am. हूँ मैं इतनी देर से. सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आप इफ यू आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन one after one, this is your successive ionization energy. Yeah, that energy will take to remove एक मिनट बच्चे, that energy will take to remove an extra from 2+ ion. Yes बेटा, ठीक है अनुष्का, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, राइट? जैसे सपोज आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, then you want to remove one more electron. You want to remove one more electron, तो आप कहां से निकालोगे? 2p से निकालोगे? प्लीज टेल मी, 2p से निकालोगे? Yes, आप ma'am. लोग रिवाइज नहीं करके आए हैं क्लास, Yes, ma'am. ठीक है? आप 2p से निकालेंगे एंड 2p से निकालेंगे तो व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 Na2+. या, तो दिस इज योर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड दिस इज योर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी. यही तो है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी. अगर आप एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो यही तो है आपकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी. अभी क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाली तो बात होगी रट्टा मारने वाली. What was the reason why third ionization energy is highest than second or first? Because when we remove one electron, it becomes positively charged. It means when it becomes positively charged, it has strong force of attraction between nucleus and valence shell electron. Yes, ma'am. Yes, Okay, if it is strong attraction between a nucleus and valence shell electron, then in order to remove second electron, we have to
we have to give more amount of energy as compared to remove first electron, Yes, ma'am. राइट. जब आपके पास क्या हुआ, वो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट. तो आपको क्या करना पड़ा, अब उसमें ज्यादा एनर्जी दे के निकालना पड़ा, क्योंकि इस केस में क्या है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑफ अट्रैक्शन हो गया बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल. ठीक है, तो यही रीजन है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट एज कंपेयर टू सेकंड एंड वन. क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट पॉइंट पे चलें. ओके, फॉर एन एटम, प्लीज ध्यान से देखिए, फॉर एन एटम m सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आर एज फॉलोज. लेट अस सपोज आई हैव m एटम, ठीक है, एंड you are removing one electron, it become positively charged, then E1 is your first ionization energy. ठीक है, when it become M plus, you are removing second electron, then it become M plus 2, this is your second ionization energy. And जब third electron निकालोगे तो it becomes ionization energy 3, third ionization energy. And I have already told you कि third ionization energy is greater than second and first. Clear? तो give me thumbs up. क्लियर? तो गिव मी थम्स अप. ठीक है, आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके चलना है बच्चों, एक एक पॉइंट, क्योंकि अगर आपने कहीं भी नहीं समझा ना तो यू विल फेस प्रॉब्लम व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, ओके बच्चों, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव फ्रॉम सॉलिड स्टेट ऑफ एन एटम. क्या हुआ रेहाना बेटा, आपने लेट ज्वाइन किया ना रेहाना, तो इस वजह से तो समझ नहीं आएगा ना. कैसे आएगा, आप टाइम पे ज्वाइन करो ना. प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम, प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम. ठीक है, कैन यू राइट इन चैट बॉक्स बेटा? यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल बेटा. प्लीज राइट इन चैट बॉक्स. आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क इशू फ्रॉम योर साइड. Okay, second point, electron cannot be removed from solid state of an atom. It has to be converted in gaseous form. Energy required from conversion from solid state to gaseous state is called sublimation energy. अभी बताया है ये वाला पॉइंट. अच्छा, आपकी कॉलेज से छुट्टी 6 बजे होती है. ओके, इन दैट केस बच्चे आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो. ठीक है, एक काम करना, आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर देना. ठीक है, हम मिलके आपकी प्रॉब्लम को रिजोल्व कर लेंगे. ठीक है रेहाना? ओके बेटा. ओके, सेकंड पॉइंट बताइए, क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमूव फ्रॉम सॉलिड स्टेट. फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म. ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट एटम इनटू गैसियस स्टेट, बिकॉज वी नो इन गैसियस स्टेट देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखिए बच्चा, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. What is endothermic process? What is endothermic process? In which? बताइए. In which? What is endothermic process? Gas is given up. No. ठीक है. Okay. When the energy is absorbed. देखो बच्चे, what is ionization energy? We have to provide the energy ना, in order to remove electron from valence shell. ठीक है, तो हम एनर्जी दे रहे हैं. ठीक है. If we are applying energy, if the energy is absorbed, then your process is endothermic. Please यहाँ पे लिखिए, endothermic is what? Energy absorbed. आपको एनर्जी देनी पड़ रही है ना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. बताइए, tell me. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. and this process is endothermic. If energy is released, then the process is exothermic. Energy release, then process is endothermic. Clear बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ध्यान रखना, these two processes are very important. If energy is absorbed, then process is endothermic. If energy is released, then process is exothermic. ठीक है, we are studying ionization energy. So ionization energy is always an endothermic process. And in case of endothermic process, delta H is positive. लिखिए बच्चों इसको, डेल्टा एच इज पॉजिटिव. एंड इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच इज नेगेटिव. हैव यू हर्ड दिस टर्म, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, इन योर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर? Yes, ma'am. ग्रेट. अरे बहुत बढ़िया.
ओके यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जिसको हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती, गायत्री को छोड़कर? कोई ऐसा स्टूडेंट है? रेहाना, मंतशा, रूपाली, हर्षदा, अनुष्का? अच्छा, ओके ओके, चलें आगे चलें। ओके, लास्ट इज यूनिट, इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो कैलोरी पर मोल और किलो जूल पर मोल। ये तो मैम आपने ऑलरेडी बता दिया। क्या मेरे बच्चों को ये 4 पॉइंट क्लियर हैं? क्लियर हैं तो थम्स अप दे दो, प्लीज गिव मी थम्स अप। शिखा, हर्षदा, रूपाली, मिशबा, ओके, ओम, गायत्री, आज तो गायत्री को भी क्लियर है, ठीक है, मंतशा, अनुष्का, ओके ग्रेट। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, ठीक है, प्लीज लिसन केयरफुली। ओके बच्चे, लेट अस टेक एन एग्जांपल सोडियम, ठीक है। सोडियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी हर्षदा ने बताया 1s2 2s2, प्लीज देखिए इधर, 1s2 2s2 2p6 3s1 बच्चों। Yes, ma'am. If I remove one electron, then it become 1s2 2s2 2p6. Okay, how much amount of energy I'll give to remove this electron? 495. वीडियो लैग हो रहा है, वीडियो लैग हो रहा है, बाकी लोग बताइए। नो मैम। अनुष्का रिज्वाइन करो बेटा एक बार। ओके देखो बच्चों, आपको ये डाटा रटना नहीं है, डोंट टू मेमोराइज दिस डेटा, दिस इज एक्सपेरिमेंटल डाटा, वी हैव टू लर्न ओनली कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, डोंट नीड टू मेमोराइज दिस 495 4581। ओके ओके, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज 495 टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल, क्लियर है? ओके, and if I remove second electron, then it becomes 1s2 2s2 2p5. How much amount of energy? 4581 kilojoule. It means जब आप 4581 4581 किलोजूल पर मोल एनर्जी दोगे तब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा फ्रॉम 2p6. Can you see the energy difference between first ionization energy and second ionization energy? Can you see the difference? Yes ma'am. First one is Yes, ma'am. 425 and 4 and second one is 4581. It means एक स्टार बना के पॉइंट लिखो, स्टार बना के पॉइंट लिखो, एल्कली मेटल्स, प्लीज पॉइंट बना के लिखिए, एल्कली मेटल्स has more difference between first ionization energy and second ionization energy. Please remember this point, this is very very important point for your NEET exam, ठीक है। सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें होता है फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में? सो योर आंसर विल बी एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स हलीना ने की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। डू यू रिमेम्बर ना एल्कली मेटल्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So alkali metals are the only metals in which there are high energy difference. Yeah, you can also say high energy difference between first ionization energy और second ionization energy. ध्यान रखना, अगर कोई पूछ ले सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस किसमें होता है तो आप बोलेंगे एल्कली मेटल्स में होता है। रीजन इसको बता सकते हो क्योंकि आप जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो वो 3s में से निकालो, यू आर रिमूविंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s, ठीक है। जैसे ही आपने 3s से इलेक्ट्रॉन निकाला इट बिकम्स 2p6, दिस इज अ नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन Yes, ma'am. Yes, and ma'am. you know very well normal gas configuration is very stable, right? तो अगर आप इसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यू हैव टू गिव मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, बताइए। You have to give high amount of energy in order to remove second electron because now you are removing from 2p6 which is already fully filled, right? जिसकी यही this is the reason कि यहाँ पे 4581 किलोजूल पर मोल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आई थिंक इट्स क्लियर। टेल मी बच्चों, अनुष्का, रूपाली,
ओके मिशबा, वेरी गुड. गायत्री, शिखा, ओके. ओम, ओके. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ओके, दिस इज योर एनसीईआरटी टेबल. ठीक है. ओके, आई एम सेइंग अगेन, प्लीज डोंट मेमोराइज दिस एक्सपेरिमेंटल डाटा. आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं, राइट? चलिए देखिए इधर. In case of lithium, देखो first ionization energy is 520 and second is 7295. There is huge difference between first and second. And third is 11,000. Less energy difference between second and third. Can you observe the changes? Observe कर पा रहे हो changes? Okay. In case of beryllium, इधर आओ. In case of beryllium, we know beryllium has 1s2, 2s2 बच्चों. Yes, ma'am. So you have to remove first electron from 2s, which is already fully filled configuration. राइट? ओके, यानी कि आप किस में से निकाल रहे हो? फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में से निकाल रहे हो, एस ऑर्बिटल में से निकाल रहे हो. और यू नो वेरी वेल एस ऑर्बिटल इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस. इट मींस यू हैव टू गिव हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन. देखो 899.5. ठीक है. इन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी 1757 एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी 14,850. कैन यू सी द चेंजेस? देख पा रहे हो? ऑब्जर्व कर पा रहे हो? 14,000, यानी कि थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यू हैव टू गिव कितनी देनी है? 14,850. सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, डोंट मेमोराइज दिस वैल्यूज. ओके, क्लियर मेरे बच्चों? देखो Yes, ma'am. मैम, यहाँ से आप क्या समझाना चाहते हो? यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा क्या? यस, यहाँ से नीट का क्वेश्चन बनने वाला है. ठीक है, तो आप ये बोरोन देख सकते हो फॉर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ठीक है, चलिए. ओके, प्लीज नोट दिस पिक्चर. लिथियम में देखो बच्चों, यहाँ पे अब मैं एक क्वेश्चन बनाने जा रही हूँ. इफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, if you have given 4 ionization energy values, please listen me carefully. If you have given 4 ionization energy value, ionization energy 1, ionization energy 2, ionization energy 3 and ionization energy 4. ठीक है, आपको एग्जाम में 4 वैल्यूज दे रखी हैं, राइट? आयनाइजेशन एनर्जी की. वी डोंट नो व्हाट इज द एलिमेंट. हमें नहीं पता ये कौन से एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है. ठीक है, तो एग्जामिनर क्या बोलेगा क्वेश्चन में? फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. Find the number of valence electron or find the group number. Find the group number. क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या पूछ सकता है वो, बताइए. Yes, ma'am. So how can we determine the number of electron, valence electron or find the group number if we have given 4 ionization energy values? This is the question और super duper important question है बच्चों ये. तो आपको क्या करना है? आपको मैं ट्रिक बताऊंगी. ठीक है. ओके, I'll tell you a trick. Please listen carefully. Okay, let us take example of lithium. First ionization energy क्या है बच्चों? जल्दी से बताओ मुझे. अनम्यूट करो खुद को प्लीज. 520.3. बहुत बढ़िया, 520.3. सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कितना है? 7,298.5. थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज 11,815. ओके, आप ये बताइए कौन से आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज्यादा डिफरेंस है? First and second. फर्स्ट एंड सेकेंड में. ठीक है, देयर इज अ ह्यूज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज इन दिस केस 520 एंड सेकेंड इज 7,298. ठीक है, आपको क्या करना है? ठीक सुनो, आपको क्या करना है? 520 जहां पे भी जिन दो आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा है ना, वहां पे एक लाइन ऐसे कर दो, ड्रॉ कर दो. ड्रॉ अ लाइन बिटवीन the ionization energy of that values in which high energy difference, right? And check करो, जैसे आपने लाइन ड्रॉ की, just look at left side. How many values are there? Only one. How many values are there? Only one. Then valence electron for lithium is 1. Then valence electron of lithium 1. And ये तो हमें पता ही है, लिथियम में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बिकॉज लिथियम हैज 1s2, 2s1. तो हमने क्या करके दिखा दिया? आयनाइजेशन हेल्प की, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज की हेल्प से हमने ये बता दिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं.
with the help of values of ionization energy we can determine the valence electron or group number as well. एक और एग्जांपल ले, आइए लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, बेरिलियम. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलो बच्चों, जल्दी से अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. 899. 899.5. एंड सेकंड इज 1752.2. third is 14,849.5. और फोर्थ वन इज अराउंड 21,000. अब बताइए कौन सी वाले में ज्यादा डिफरेंस है? Second and third. सेकेंड एंड थर्ड. ओके, अनुष्का. अनुष्का टेल मी बेटा. मिशबा, शिखा, Yes, ma'am. Second and third. पक्का कंफर्म? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस. अब क्या करना है? ड्रॉ अ लाइन, देन लुक एट लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड कौन सा हो जाएगा आपका? सॉरी, मैं लेफ्ट हैंड, एक मिनट रुको. हाँ, लेफ्ट हैंड साइड देखना है. ठीक है. हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर? 2. 2. ठीक है. ये आपने इधर देखो, ये आपने लाइन ड्रॉ की, अपने लेफ्ट साइड देखो कितनी वैल्यूज हैं? 2. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2. 2. इजी इजी पीजी. जल्दी बताओ. तो आपका नीट का कितने Yes, मार्क्स का क्वेश्चन बन गया यहाँ से? 4 मार्क्स का. ठीक है. ओके, एल्यूमिनियम में देखो, ये आप बताएंगे. ट्राई योरसेल्फ बेटा, ट्राई योरसेल्फ. हाउ मेनी? आपको देखो, वैसे तो एल्यूमिनियम में पता है आपको कितने होते हैं. मान लो सपोज दिस एलिमेंट इज X. नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन in element X. Refer to these ionization energy values. Okay, Rupali is saying 2. Rupali is saying 2. Okay, बाकी बच्चों? Ma'am, yes, 2. Valence shell. Mantasha is saying 3. Ma'am, 3. Ma'am, 3. 3. 3 electrons. Harshita, can you explain beta? Ma'am, there is a huge difference between third and fourth ionization energies. अरे वाह, क्या बात है. क्लैप कर दो फॉर हर्षदा. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. यस, देयर इज a huge energy difference between third and fourth. Please look into this. 2700 कितना है ये? 2744 and fourth देखो 11,000. कितना जंप मार गया वो, है ना? 2700 से एकदम 11,000 पे. ठीक है. तो ह्यूज डिफरेंस है. तो आपको क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड देखो, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर? 3. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3. ठीक है. ओके, यू कैन ऑल्सो टेल द ग्रुप नंबर. ग्रुप नंबर भी बता सकते हो. बताइए, क्या आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख के यू कैन यू डिटरमाइन द ग्रुप नंबर एज वेल? नो? शिखा, अनुष्का, कैन यू डिटरमाइन द ग्रुप नंबर विद द हेल्प ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बच्चे, अरे नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, कुछ तो बोलो. चुप हो जाते हो. अगर नहीं तो मैं समझाऊंगी ना फिर आप लोगों को. नो मैम, चलिए समझाऊं मैं थोड़ा सा. आ जाओ. फिर ये ma'am. क्वेश्चन करेंगे, फिर ये क्वेश्चन करेंगे. ओके, कहाँ समझाऊं? ओके, यहाँ ही समझाती हूँ. देखो बच्चों, देखो, इन ग्रुप फर्स्ट हलीना ने की रब से फरियाद. डू यू रिमेम्बर दिस ट्रिक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. ओके, इन ग्रुप 1 हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर बच्चे? ओनली 1. 1. ओके, इन ग्रुप 2 बेटा मांगे 1. बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी. ओके, बाप हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप 2? 2. 2. देखो ना, 1s2 2s2. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन लार्ज शेल? 2. तो 2. क्लियर है ये दोनों? चलिए, तो मैं इसको रिमूव कर रही हूँ. आपको ग्रुप 13 का बताती हूँ. ओके, ग्रुप 13 बैंगन आलू गाजर. हाँ, In Thela. अरे वाह, वाह भाई वाह. ठीक है. बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. ठीक है. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन 1s2 2h2 2p1. तो बच्चा, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल? 1. 2 + 1.
3 बच्चों, 3. एन इक्वल 2 ना, वैलेंस शेल कौन सी है इसमें, 2 वाली है ना बेटा, Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। तो Yes, 2 ma'am. वाली शेल में कितने Yes, इलेक्ट्रॉन ma'am. दिख रहे हैं आपको, 3, 3. तो यानी कि ग्रुप 3 13 है electrons. 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 14 4, ग्रुप 15 5, राइट। इसी तरीके से चलता रहेगा। ओके बच्चों, Yes, ma'am. जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर ऑक्सीजन, 1s2 2s2 2p4, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल बच्चों? अनुष्का, how many valence electron? Yes, 6. It means group number is 6 नहीं होगा। आपको क्या करना है, देखो बच्चे, फॉर पी ब्लॉक देखो आपको क्या करना है, मैंने आपको सिर्फ दिखाया था ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड कर देना है। डू यू रिमेम्बर दैट क्लास? Yes. तो अगर ma'am. if there are 3 valence electron, then group number is 13. If there are 6 valence electron, then group number is 16. 16. If there are 7 valence electron, group number is 17. If there are 8 valence electron, then group number is 18. As simple as that. Clear है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वाला क्लियर है? मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों का ये सबसे फेवरेट चैप्टर बन जाए, ठीक है, और हम बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। और बच्चों प्लीज लिसन मी केयरफुली, मैं यहाँ पे ना आई फ्लोट अ गूगल फॉर्म, ठीक है, एंड मार्क योर अटेंडेंस आफ्टर द एंड ऑफ क्लास, ठीक है। एट द एंड ऑफ क्लास यू हैव टू मार्क योर अटेंडेंस, ठीक है। आई विल फ्लोट अ गूगल फॉर्म इन चैट बॉक्स। क्लियर है सबको? गूगल फॉर्म डालूंगी मैं चैट बॉक्स में, वहां पे आप अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे, ठीक है, बिकॉज यू नो ना, यू विल गेट स्टडी मटेरियल और टैब, है ना। इफ योर अटेंडेंस इज 100%, अगर आपकी अटेंडेंस 100% है या होगी, then only you will get tab or study material. Clear? Yes, ma'am. ठीक है, तो make sure क्या करना है, be regular and be consistent, because consistency is the only factor. आगे कौन कंप्लीट करेगा इसको? Okay, consistency is the only key to success. ध्यान रखना ये बात मेरी। आगे चलें, चलो। Yes, ma'am. This question, try to solve this question मेरे बच्चों, try to solve this question. The 5 successive ionization enthalpies of an element are 800, 2427, 3658, 25,000 and ये कितना है 32,000, right? You have to tell me the number of valence electron in the element is. Please try to solve this question. Okay, Shikha raised her hand. Okay. Harshada also. Mishpa, Anushka, अरे वाह क्या बात है। रूपाली, वेरी गुड। देविशा, शाबाश। इरफान, ओम, रूपाली, रेहाना, यस, मंतशा, शाबाश, ओम, वेरी गुड। शिखा, कैन यू टेल मी बेटा? Ma'am, option 3. Option 3, 4 is your answer? No, ma'am, it's wrong. Wait. Shikha, according to you, 4 valence electron in the element? Yes, ma'am. Are you sure? एक बार फिर से चेक करो अपने आंसर को, जो आपने कॉन्सेप्ट लगाया, एक बार फिर चेक करो। Its answer is 3, Anushka is saying. Harshada? Okay, Ma'am, option option number 2. Option number 2. Ma'am, yes, option 2 is. ओके, देखो आई थिंक आपने देखने में थोड़ी मिस्टेक कर दिया है। देखिए 800, 2427, 2427 एंड 3658 एंड नेक्स्ट इज 25,000 और लास्ट वन इज 32,000, ठीक है। इट मींस this is your first ionization energy, this is your second, this is your third ionization energy, and this is your fourth ionization energy, and this is your 5 ionization energy. And we can see there is a huge energy gap between second ionization, third ionization energy and fourth ionization. Fourth Just ionization. draw a line. Just draw a line and देखो in left side how many values are there? 3.
3. valence electron are 3. Valence electron is 3. ठीक है? Yes, ma'am. क्लियर? तो यानी कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. हो जाएगा ये क्वेश्चन मेरे बच्चों से? Yes, पक्का हो ma'am. जाएगा? ठीक है. शिखा अभी क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Got it. ग्रेट. ओके, नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड. ठीक है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कितने ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड. फर्स्ट वन इज साइज ऑफ एटम, सेकंड इज मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड वन इज स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड फोर्थ वन इज पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ठीक है, ओके. फर्स्ट वी विल डिस्कस साइज ऑफ एटम. एक बार खुद सोचो, साइज ऑफ एटम कैसे डिपेंड करेगा आयनाइजेशन एनर्जी पे? ओके, along the period, Yes, ma'am. top to bottom, ये दोनों चीजें हमें डिस्कस करनी है. ठीक है, चल. along the period we know size of atom along the period atomic radii क्या होता है हर्षिता? decreases. या atomic radii decrease होता है. it means there is a strong force of attraction between nucleus and valence shell electron. Yes. If there is a strong force of attraction between nucleus and valence shell electron, you have to give more amount of energy. More energy. It means size is inversely proportional to ionization energy. Size छोटा होगा तो ionization energy ज्यादा होगी. This is your general. In general, we can say कि size is inversely proportional to ionization energy. If atomic radii is so small, then ionization energy is more. Yes, clear हो गया size. And if I'm talking about top to bottom, we know number of shells increases बच्चों. Yes. Yes, Size ma'am. increases, and if size increases, then ionization energy is less. Decreases. Yeah, ionization energy decreases when we move top to bottom. ठीक है, तो along the period ionization energy increases, top to bottom ionization energy decreases. This is general statement because there are exceptions as well. ठीक है, this is your general statement. exceptions भी हैं, वो exception से ही question बनता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, okay. Second one is magnitude of nuclear charge. Can anyone explain this factor? Magnitude of nuclear charge. Nuclear charge is what? Z effective. Effective nuclear charge. Ma'am, Yeah. जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी. हाँ, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, it means force of attraction between nucleus and valence shell electron becomes stronger. ठीक है, then ionization energy increases. It means, can I say Z effective is यहाँ लिख दूं, Z effective is directly proportional to ionization energy बच्चों. Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है, as simple as that. Okay, third one is screening effect of inner electrons. Screening effect of inner electrons. सोचो. Okay, you know, do you remember the shield created by inner electrons? याद करो वो दिन, जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, जो कोर इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करते हैं? शील्ड करके रखते हैं. किसको? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से. बताओ, वो क्या करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करके रखते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन. याद करो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, याद करो. जस्ट लाइक माई स्क्रीन गार्ड. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ऐसे ही जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्ड करके रखते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को. बिकॉज ऑफ दिस देयर इज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. Yes, ma'am. There is less force of attraction between nucleus and valence shell electron. मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी to remove the most loosely bound electron. Can I Yes, write? ma'am. देखिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ लिख देती हूँ. स्क्रीनिंग इफेक्ट is inversely proportional to, या is that sorry, एक मिनट.
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज लेस। बोलिए बेटा। मैम कैन यू Yes, रिपीट? ma'am. ओके, यस, ओके। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब पता है ना मिश्बा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बच्चे, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। आई यस हैव मैम। टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लास। एक खुद सोचो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है। देखो, लेट अस टेक एन एग्जांपल। कहाँ ले, ओके यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। कंसिडर दिस इज माय न्यूक्लियस and this is shell, n is equal to 1, n is equal to 2. Suppose I have electron in valence shell, ठीक है। These are inner shell, ठीक है। तो I have electron in inner shell, देखिए बच्चों, ठीक है। तो inner shell electron क्या कर रहे हैं? What they are doing? They create shield create कर रहे हैं to protect। किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बच्चे? न्यूक्लियस को। ठीक है, हाँ, न्यूक्लियस का ऐसा शील्ड करके रख रहे हैं सो दैट देयर इज अ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। ठीक है, दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो प्यार है, वो कम हो रहा है ना, क्योंकि बीच में आ रहे हैं, ये बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, इट मींस आपको ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है मिश्बा? यस मैम। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनर शेल में, इट मीन स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों कम होगी। ठीक है जी, ये देखो, एज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन टेंड टू डिक्रीज द आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? और देखो, न्यूक्लियर चार्ज, विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। एंड व्हाट अबाउट साइज ऑफ एटम? As the size of atom increase, outermost electron are less tightly held by nucleus. ठीक है, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, एज अ रिजल्ट इट बिकम इजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। क्या ये वही है जो मैंने अभी बताया? Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. ओके। एंड पेनिट्रेशन इफेक्ट, वी नो द पेनिट्रेशन इफेक्ट फॉर s ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन p देन d एंड f। ठीक है, s p d f। ठीक है, इस इट मीन्स वी हैव टू give more amount of energy in order to remove electron from s orbital, because s orbital is closer to nucleus, penetration power is very high as compared to bdf orbital। बोलिए बच्चों, बताओ बेटा। ठीक है, s orbital न्यूक्लियस के पास है ना, और न्यूक्लियस के पास है, इट मींस देयर इज a strong hold बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो उसमें आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन। यस मैम। ओके, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? इधर आओ। द एटम हैविंग ए मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हैज लेस टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड कंसिक्वेंटली हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इफ देयर इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो वहां से इन ऑर्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, वी हैव टू गिव हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. एग्जाम्पल लाइक नोबल गैस विच इज फुल्ली फिल्ड। इनको ना चाहिए, देखो नोबल गैस क्या होते हैं ना इनको चाहिए, इनको कुछ लेना भी नहीं और कुछ देना भी नहीं, ऐसे बंदे हैं ये, तभी तो ये फ्री स्टेट में होते हैं। लाइक नियोन हो गया, हीलियम हो गया। हैव यू हियर्ड कि Ne2 होता है, He2 होता है? नो ना, Yes, ma'am. No, ma'am. बिकॉज इट इज फुल्ली फिल्ड। ठीक है, अपना अकेले रह के खुश है। ठीक है, नोबल गैसेस आर हैप्पी टू बी अलोन। ना इनको लेना है ना इनको देना है। ठीक है, ओके। नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड बच्चों, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3 बच्चों, Yes, ma'am. हाफ फिल्ड। एंड फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p6, ये भी 3s2 3p3 हो जाएगा। इट मींस इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ionization energy has high value because both are half filled configuration। ठीक है, ओके। लाइक इन बेरिलियम और मैग्नीशियम, देखो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 and 3s2। इट मींस फॉर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, या आई कैन आल्सो से ग्रुप नंबर 2 हैज हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। Yes, ma'am. ठीक है, इट मींस एक तो हमारी नोबल गैसेस हो गई,
एक हमारे ग्रुप 15 के मेंबर्स हो गए, एक हमारे ग्रुप 2 के मेंबर्स हो गए। ठीक है जी, देखिए, देखो बच्चों, ठीक है, पक्का वाला ठीक है, ओके। ये वाली चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी, एक बार चेक कर लो। प्लीज रीड दिस वंस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है एनाइजेशन एनर्जी का, प्लीज देखो इधर, वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड। हो गया ये अपना, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज रेगुलरली, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर इन सेम एनर्जी लेवल, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, बताओ बच्चों। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ओके। ये वाला देखिए, देखो बच्चे, एक्सेप्शंस आ रही हैं यहाँ, बिकॉज मैंने कहा था इन जनरल, प्लीज लिसन मी केयरफुली, आई हैव टोल्ड यू कि in general when we move along the period size decreases, ionization energy increases, है ना, but there are some exceptions, like okay, let us take an example. If I take an example of beryllium and boron, ठीक है, according to my concept जो अभी मैंने बताया, boron has higher ionization energy than beryllium because boron has group 13, ठीक है, ग्रुप 13 का मेंबर है, और आपका जो बेरिलियम है वो ग्रुप 2 का है बच्चों, ठीक है। And we know when we move left to right, ionization energy increases. It means ionization energy value of boron should be high as compared to beryllium. Yes, ma'am. यस मैम। But in actual, beryllium has high ionization energy value as compared to boron. There is exception, है ना। देखो reason क्या है, इधर आओ बच्चों। There is a decrease in ionization in the value of ionization energy from beryllium to boron in spite of increased nuclear charge. What is the reason? First reason, greater penetration of 2s electron as compared to 2p electron, because we know in beryllium the configuration is 1s2 2s2, while in case of boron 1s2 2s2 2p1. ठीक है, for same shell you can compare by penetration, है ना। we know कि penetration power of s orbital is greater than 2p. it means यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल होगा because s orbital is closer to nucleus. First reason. Second, better shielding of 2p electrons by inner electron. ठीक है जी, इनकी ज्यादा अच्छी shielding होगी. Third one is relatively stable configuration of beryllium because beryllium has fully filled configuration, fully filled orbital, completely filled orbital. ठीक है, क्या reason में समझ आया कि why beryllium has high ionization energy value as compared to boron? बताइए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए बच्चों, why beryllium has high value of ionization energy than boron? होना तो चाहिए बोरोन की ज्यादा, बट है किसकी ज्यादा बच्चों? हर्षदा, किसकी ज्यादा है? Beryllium. क्या क्लियर हो गया रीजन? Yes, ma'am. पक्का? तो अगर क्लियर हो गया, मैम को ये दिया करो ना, और प्यारी सी स्माइल भी दे दिया करो, कीप स्माइलिंग इन चैट बॉक्स। हाँ, ऐसा हार्ट भेज दिया करो भाई, मैम विल बी हैप्पी। अनुष्का ने तो बहुत सारे दिल भेज दिए भाई मैम को। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, चलिए, दिस इज योर फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकेंड एक्सेप्शन इज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, सेकेंड एक्सेप्शन इज नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। ओके बच्चों, ओके, देखिए लिथियम, इधर आओ बच्चों, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, ओके ओके। According to our concept, oxygen has high value of ionization energy because अभी मैंने आपको बताया as we move from left to right, ionization energy increases. But also I am saying there are some exceptions. ठीक है, first exception was beryllium and boron, and second exception is nitrogen और oxygen. देखिए बच्चों, oxygen has 1s2 2s2 2p4, while in nitrogen is 1s2 2s2 2p3. अब बताइए किसकी ionization energy ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की या ऑक्सीजन की? नाइट्रोजन की। Why देविशा? Why nitrogen has high value of ionization energy? Because it is Because it is fully filled.
हाफ फिल्ड, नो बच्चे फुल्ली फिल्ड नहीं, बिकॉज इन 2p मैक्सिमम Half 6 filled. इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, है ना, ये हाफ फिल्ड है, 2p3 है, ठीक है, हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड की वजह से क्या होगा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, variation in group. I have already told you the values of ionization energies of element decrease regularly with increase in atomic size. This is your general statement. ठीक है. There are some exceptions as well. ठीक है. देखिए variation in group बच्चों. In group first. In group first देखिए continuous there is decrease in ionization energy from lithium to cesium. Can you see in this graph? Lithium to sodium 419, 403 and 374. These are the values for ionization energy. देखिए बच्चों. For lithium 522, sodium 496, potassium 419, for rubidium it is 404 and cesium 374. ठीक है, देख रहे हो? Ionization energy decrease when we move from top to bottom in group first. Clear है बच्चों? देखो, देखिए ये देना है, ये देना है, नहीं तो क्लास का टाइम हो गया बच्चे, अब अपना अभी तक नहीं हुआ आयनाइजेशन एनर्जी। चले Yes, ma'am. ओके, ये देखिए बच्चे जल्दी से उसको फटाफट रीड करो, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस। A gradual increase in the atomic size due to progressive addition of new energy shell, ये भी मैंने बता दिया है। देखो जल्दी जल्दी इनको, ये मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी कवर दीज पॉइंट्स। देखिए बच्चों, शाबाश, एक बार इसको पढ़ो। In a period, ionization energy of a second group is more than the element of group 13. ये भी मैम आपने बता दिया। It was our first exception ना, बेरिलियम एंड बोरोन, ठीक है, ओके मैम, ये भी आपने बता दिया, it was our second exception, ठीक है, group 15 and group 16, ठीक है, please remember this concept. 15 group has higher value of ionization energy as compared to 16, ठीक है, ओके। Yes, ma'am. ओके, ग्रुप 13 में क्या है, ग्रुप 13 का ये भी याद करने की नीड नहीं है, मैं आपको पी ब्लॉक में कराऊंगी, आई विल डिस्कस इन पी ब्लॉक, बट फॉर नाउ आप देख सकते हो द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज नियरली इक्वल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ गैलियम, बिकॉज बच्चे इन गैलियम लिख लो, बिकॉज इन गैलियम electrons are filled in d orbital, and we know d orbital have poor shielding effect. Remember this point. Yes. सबसे ज्यादा s का होता है, फिर p का, फिर d का, एंड देन f का, ठीक है, d orbital have poor shielding effect. If poor shielding effect, then there is a strong force of attraction between nucleus and valence shell electron, ठीक है, it means size decreases and ionization energy increases, ठीक है, but from experimental data we have found that aluminium is nearly ionization energy of aluminium is nearly equal to ionization potential, but अगर मान लो एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता, if there is no option in which aluminium is nearly equal to gallium, then in that case gallium has more ionization energy than aluminium. क्या बोल दिया मैंने ये बोला कि अगर सपोज एग्जाम में आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता जिसमें एल्यूमिनियम और गैलियम की सेम आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, इन दैट केस आप ये वाला ऑप्शन ढूंढेंगे, यू विल फाइंड दिस ऑप्शन, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यही मार्क करेंगे। रीजन क्या है, बिकॉज इन गैलियम इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डी ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये देखिए सेम, प्लीज एक बार इसको देखिए, प्लीज हैव अ लुक इन पीरियोडिक टेबल। देखो थैलियम एंड लेड कौन से पीरियड से बिलोंग्स टू 6th पीरियड, इंडियम एंड टिन बिलोंग्स टू 5th पीरियड, ठीक है, याद करो वो जनरल स्टेटमेंट क्या बोली थी, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, यही बताया था मैंने, Yes. बट Yes, इन ma'am. केस देयर इज एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है, व्हाट इज द एक्सेप्शन, कि जो आपका ये है थैलियम है हैज मोर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू इंडियम, सेम फॉर लेड, ठीक है, बिकॉज इन थैलियम एंड लेड फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
ठीक है, electrons are filled in f orbital and we know very well f orbital have poor shielding effect. Because of this, ionization energy increase thallium as compared to indium, and in case of tin or lead has high value of ionization energy. देखिए बच्चों, please read this statement. The value of ionization potential of thallium and lead of sixth period is more than the ionization energy value of indium and tin of same group. This is because the electrons are filled in f orbital, which do not completely shield the outer electrons. क्या क्लियर हो गया बच्चों ये स्टेटमेंट? Yes, ma'am. क्लास से कोई नहीं जाएगा, मैं आपको गूगल फॉर्म फ्लोट करूंगी, ठीक है? एक काम करो, मुझे बस ये क्वेश्चन करके दिखा दो. ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. Okay, I'll float a Google form in chat box. Please mark your attendance. Okay. Ma'am, option 4. First ionization enthalpy. Harshida, first ionization energy. Which among the Ma'am, following? it's option number 1, nitrogen. It's option number 1. Anushka, according to you, beta, Yes, ma'am. nitrogen is correct. Yes, Om. Yes, Om. Please tell me. Nitrogen, ma'am. Yes, nitrogen. अभी बताया ना. I just told you कि nitrogen has half fill configuration है ना, 2s2 2p3, while in oxygen 2s2 2p4. तो नाइट्रोजन की वैल्यू जो होगी ज्यादा होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, ओके. ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. और आप गूगल फॉर्म जो गूगल फॉर्म मैंने शेयर किया है, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस. Which of the following atom has the highest first ionization energy? Rubidium, potassium, sodium, and scandium. And give me thumbs up if you have marked your attendance. ठीक है? Okay, yes, Om. Fourth option, ma'am. Scandium. Fourth option, scandium. Okay, what about others? Shikha, मैम स्कैंडियम. scandium. Okay, बाकी जब तक मेरे सारे बच्चे मुझे आंसर नहीं दे देते मैं आगे नहीं जाऊंगी. छोड़, आज आपको नहीं तो जाने नहीं दूंगी मैं घर. Okay, Shikha, Om is saying Shikha. Okay, Harshida is saying option 4. Rupali is also saying scandium. Okay, yes, scandium is correct one because alkali metal has lower value of first ionization energy. ठीक है, इधर देखो scandium कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है? फोर्थ पीरियड से. ठीक है, और हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ionization energy increases. ठीक है, तो scandium is correct. Okay, बच्चों, can you summarize the whole lecture in 3 to 4 points? 1, 2, 3, 4. कोई करेगा? शिखा? Electron gain enthalpy. नहीं, ionization energy. हर्षदा? हाँ, yes, ma'am. That will give us. Okay, ionization energy पढ़ाया आज मैम ने. Okay. इरफान, आप बोलोगे? इरफान, can you summarize बेटा? नहीं? No? अनुष्का? Do you want to try? मैम ionization energy depends on which factors? Okay. उससे भी पहले क्या किया था हमने शिखा? सबसे पहले क्या बताया था मैंने? Definition. Read first. Yes, Om. Definition करी थी ना. Definition of ionization energy बच्चों. Then you can write in chat box बेटा. आप chat box में बता दो क्या क्या किया था. फिर मैं आपको क्लास जो है लीव करूंगी. Tell me बच्चों. नहीं आइडिया? किसी ने मेरी क्लास को नहीं सुना ध्यान से?
1 घंटे से मैम जो बोल रही थी किसी ने भी नहीं सुना। हर्षदा या सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ओके नेक्स्ट, and in successive ionization energy I have told you third ionization energy is greater than second. Second and first. या ठीक है, ऐसे आप जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे, मान लो कोई फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकाले तो फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। उसके अलावा मिशबा, मंतशा, फैक्टर्स, यस फैक्टर्स मैंने बताए थे आप लोगों को, किस किस पे डिपेंड करता है, साइज पे, राइट। और पेनिट्रेशन पावर, वेरी गुड। Electronic configuration. यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शाबाश। न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज, बस यही था। अच्छा, Successive and हाँ जी, यस ओके। एक्सेप्शंस भी पढ़ी थी, वही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। कौन कौन, हाँ यस, कौन कौन सी एक्सेप्शन, व्हाट वाज द एक्सेप्शंस ओम? या बेरिलियम एंड बोरोन और nitrogen and नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वेरी गुड। हाँ, लेड की थी एंड टिन की थी, एंड इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, इसमें बेरिलियम का याद था, नाइट्रोजन हैज ग्रेटर देन, इसमें लेड एंड इन दिस केस थैलियम। डू यू नो द रीजन? yes ma'am. हाँ ठीक है, यस ओके ओके बच्चों, एक बार देखिए, बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, आपको क्या करके आना है, इनका ऑर्डर लगाना है, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ट्राई यूरसेल्फ। ठीक है, घर पे करना ट्राई। ठीक है, आपको ऑर्डर लगाना है आयनाइजेशन एनर्जी का, लिथियम टू फ्लोरीन। ठीक है, एक तो ये चीज है। एंड द होमवर्क 1 2 3, कितने क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 14 क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, आई हैव आल्सो मेंशन्ड द आंसर की। ठीक है, लेकिन प्लीज डोंट लुक इनटू आंसर की, फर्स्ट प्लीज ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चंस ऑन योर ओन। ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू सोल्व द क्वेश्चन देन प्लीज गो टू द आंसर की। ठीक है, अदरवाइज आप सीख नहीं पाओगे बेटा कुछ। ठीक है, तो पहले आप खुद से करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो आंसर की देखेंगे। ठीक है, ओके। और कोई भी डाउट होता है मुझे पर्सनली मैसेज करो। ठीक है, और मुझे ये जरूर बता दिया करो, यस मैम आई हैव डन माय होमवर्क। ठीक है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। नहीं नहीं बच्चे, अनुष्का कल टेस्ट नहीं है बेटा, टेस्ट विल बी ऑन 17 दिसंबर। नेक्स्ट संडे कब है, क्या डेट है नेक्स्ट संडे को? 17 है क्या? हाँ, या 17। ठीक है, और जो चैप्टर आएगा आप लोगों के टेस्ट में, इट विल बी योर क्या है ये चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ओके। सभी बच्चे ने गूगल फॉर्म फिल कर दिया है? Yes ma'am.